Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. In this video today I'm going to discuss with you all about the syllabus of UGC NET JRF Law Exam. I will be discussing the syllabus in detail for paper 1 as well as for paper 2. So don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all the beneficial videos that we keep on bringing exclusively at Legal Bee. अगर आपके कोई भी queries हैं आप हमें comment section में लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप hello@iexambee.com पे email भी कर सकते हैं, और you can call on this number also. Visit the website www.iexambee.com for more details and updates. UGC NET or JRF law exam specifically I'm going to cover in this video the entire syllabus. Syllabus needs to be known first and June attempt का notification कभी भी आ सकता है. So उसके लिए आपको syllabus पता होना बहुत ज़रूरी है. इसमें मैं कुछ important notings ये भी दूंगी कि कौन से areas हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा focus करने की ज़रूरत है. So do watch this video till the end, take all the beneficial inputs, and I would suggest that you should download the PPT as well. Other than that, in the description of this video, I have attached the PDF for paper 1 as well as paper 2 syllabus. तो आप उसको भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपको अलग से वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है. It's ready there in the description of this video. This examination is a test to determine the eligibility of Indians for assistant professor or junior research fellowship and assistant professor both. यानी कि जब भी फॉर्म आएगा तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करना है सिर्फ, या फिर आपको JRF फेलोशिप के लिए भी अप्लाई करना है. सो यू हैव टू चूज द सेकेंड ऑप्शन. इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है अलग से, जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न को और डिटेल में डिस्कस किया है. इस एग्जाम का मोटो क्या है ये भी डिस्कस किया है. तो आप लीगल बी के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं. This exam is conducted twice a year, जो जून में अभी expected है. Actually, the date has already been announced by UGC. So the exam pattern is that the mode of examination shall be conducted in CBT mode only, and it will be having two papers. Paper 1 is of 100 marks, number of questions will be 50, and paper 2 is 200 marks, number of questions will be 100. It is MCQ pattern, and the total duration is 3 hours for this paper, and this is going to be in continuation. You may take note of that as well कि continuation में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा. मतलब आपकी चॉइस है कि आपको पहले पेपर 1 सॉल्व करना है या पेपर 2 सॉल्व करना है. सो ये एक एडवांटेज है. क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी टोटल 150 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1 एंड 100 questions for paper 2. Each question will be carrying 2 marks, and there is no negative marking. स्टार्टिंग विद द सिलेबस ऑफ पेपर 1 फर्स्ट. मैंने इसमें से क्लिपिंग्स ले लिए हैं आपके लिए, यहाँ पे इजी होगा समझने में. फर्स्ट यूनिट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड. दैट विल बी हैविंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में से, और जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं. देन अदर देन दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर, लर्नर एंड द ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, स्वयं प्रभा, मॉक, ये सारा होगा. उसके अलावा जो टीचिंग का इवैल्यूएशन सिस्टम है उस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं. Then the second unit is research aptitude. In research aptitude, many questions are asked in UGC NET examination. And research aptitude, I would suggest that it is a very scoring unit. क्योंकि अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मार्क्स स्कोर करने मिल जाते हैं. जो मेथड्स हैं रिसर्च के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, then what are the steps in the research process, other than that what are the formats and styles of referencing, research ethics, ICT का application क्या है रिसर्च में, ये भी बहुत important area है. Then next unit is the comprehension. I would suggest that comprehension is something which you can only practice. This is not something which you can study. एंड अगर किसी का ये स्ट्रॉन्ग एरिया है सो इट इज़ एन एडवांटेज फॉर दोज पीपल, एंड अगर वीक एरिया है तो उन्होंने अभी से कॉम्प्रिहेंशंस एक कॉम्प्रिहेंशन रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स. एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत इस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एज वेल. इस यूनिट के लिए भी आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करना होता है. नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं.
देन द अलजेब्रा बेसिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरेजेस, और इसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन भी बन जाता है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट देयर ऑल्सो। डेटा इंटरप्रिटेशन कंपलसरी आता ही है यूजीसी नेट में, फिक्स है वो, सो वो एक अलग सी यूनिट है, लेकिन उसमें जो मैथ्स होता है बेसिक, वो मैथ्स यही होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच यू हैव टू डू। सो वो भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट वी हैव द कम्युनिकेशन यूनिट। कम्युनिकेशन यूनिट इज़ अ वेरी इजी एंड अगेन अ स्कोरिंग यूनिट लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड ओनली। इसको भी आप क्वेश्चंस यहाँ से भी इजी आते हैं, जनरली इतने डिफिकल्ट नहीं आते। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में रिक्वायर सम टाइम फॉर प्रेपरेशन। उसमें इंडियन लॉजिक वाला यूनिट भी है, वहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अदर देन दैट वी गेट questions on the fallacies, then we get questions on the basic वेन डायग्राम से क्वेश्चंस, मतलब वेन डायग्राम से नहीं आते डायरेक्टली, बट जैसे सिलॉजिज्म आ जाता है तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम्स एंड ऑल बनाने की ज़रूरत होती है, और वो उससे वो काफ़ी ईजी भी हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट अगेन। DI का मैंने आपको बताया है कि आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा, दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू कैन डू फॉर DI एंड कॉम्प्रीहेंशन। द लास्ट यूनिट, लास्ट 2-3 यूनिट्स दैट आर लेफ्ट इज ICT। ICT में शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंटरनेट, एंड करंटली आप जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो ईमेल्स करते वक्त जो भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो ईजी हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक टेक्निकल हैंड अच्छा होता है। देन पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये दोनों यूनिट्स काफ़ी ड्राई यूनिट्स हैं। यहाँ से मींस डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मेमोरी बेस्ड है, सो इसके लिए आपको नोट्स बनाना होगा, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लर्निंग से रिलेटेड है, और जितने भी कमीशंस हैं, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कमीशंस अभी तक आए हैं, प्री इंडिपेंडेंस एरिया, एंशिएंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सब आपको पढ़ना होता है। अदर देन दैट द एनवायरनमेंट पार्ट, इट इज़ एक्चुअली लेंदी बट है ईजी ही, बट उसमें कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं, कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, देन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको एनवायरमेंटल लॉ में भी पढ़ना होता है। तो आप इस यूनिट को एक्चुअली लॉ वाला पार्ट और ये पार्ट साथ में भी कर सकते हैं, इट बिकम्स मोर ईजी एंड टाइम सेविंग फॉर यू। Now this was all that we had from paper 1. There were 10 units. Now let's go to the paper 2, that is the law part. I would suggest that the most important units are there on the first slide itself, that is the first and the second unit, jurisprudence, constitution and administrative law. यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। jurisprudence से हमेशा नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, डेफिनेशंस, बुक्स, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस शुड बी वेरी गुड। मीन्स इन 10 टॉपिक्स में से आई वुड से दैट पहले फर्स्ट 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी के टॉपिक्स तो जनरली हमें पता होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ का अगर आपने कंसेप्ट एक बार पढ़ भी लिया, यू कैन सॉल्व इट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से इट गोज विदाउट सेइंग दैट द एंटायर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन even questions can come from certain unexpected areas also sometimes, जैसे इलेक्शन कमीशन से भी आ सकता है, सो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अच्छा है तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एंड ये जितने टॉपिक्स हैं स्टिक टू द सिलेबस ओनली, डोंट गो इनटू एक्स्ट्रा थिंग्स अदर देन व्हाट इज मेंशन्ड। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एंड इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं द डेफिनेशंस, अगेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कंपल्सरी क्वेश्चन सोर्सेज पर तो आता ही है। अदर देन दैट रिकग्निशन कंसेप्ट, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम कंसेप्ट, केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर आपको केसेस पर काफ़ी ध्यान देना है। अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इन ह्यूमैनिटेरियन लॉ, देर आर जिनेवा कन्वेंशंस, देन हर एक कन्वेंशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना होता है।
Then in law of crimes, this is something which you can do, means ये IPC जो है easily हो जाता है कवर और याद भी रहता है, बिकॉज हम लोगों ने IPC बहुत अच्छे से पढ़ा भी होता है LLB में, तो हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है ये पार्ट. इसमें भी जितने टॉपिक्स मेंशन है फोकस ऑन दैट ओनली. IPC से भी क्वेश्चंस आते हैं. Law of torts and consumer protection. This area, comparatively, number of questions can be less than the other units which we have discussed up till now. But you do have to do. Means आपको torts, consumer protection यहाँ से एक दो questions आ सकते हैं. Motor Vehicle Competition Act में से less chances होते हैं, but आने के लिए आ भी जाता है. बट एक हाथ दो क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं. कमर्शियल लॉ इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. अभी जो नेट हुआ है हाल ही में, उसमें कंपनी लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस थे. जनरली स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये UGC नेट में ऐसे होते रहता है. दे कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं कि यहीं से क्वेश्चंस पूछने हैं, यहाँ से नहीं पूछने हैं, या मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस यूनिट से इतने होने चाहिए. ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है इस एग्ज़ाम का. सो दैट इज़ वाई एवरीथिंग इन द सिलेबस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो कॉन्ट्रैक्ट्स, it goes without saying that it is very important. Then Negotiable Instruments Act, company law. Company law, you don't have to do the entire one. You just have to focus on these three areas: incorporation of company, prospectus, shares and debentures, directors in meetings, corporate social responsibility. Only this much you have to do from company law. And with the case laws, the landmark ones. Family law is an important unit, and many questions come from family law as well. Case laws also come from family law, but it is difficult to do the case laws from family law because we have not done that in our LLB. This is something which is common for everybody. We don't focus much on case laws when we are studying family law in our college. Then sources and schools is also an important topic over here. Other than that, environment and human rights law is very important topic. This you can do when you are preparing for environment in the paper 1. NGT is an important topic in that, and the case laws relating to NGT. Then Article 21, that has been guaranteed, and its interpretation along with environment, MC Mehta cases, and in environmental law there are many cases. I would suggest that you should go through the case laws in detail. ये कुछ subjects हैं जिनके लिए case laws काफ़ी important है. Contracts, environmental law, constitution, public international law, इनमें आपको case laws को बहुत अच्छे से करके जाना है. Then other than that, the conferences are there over here also, and the commissions. Which commissions are there? Human Rights Commission for Women is there, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes National Commission is there. अब इसका constitutional provision भी आपने देखना होगा. Then Environment Impact Assessment, what is this concept? Last two units, IPR and Comparative Public Law and Systems of Governance. IPR, it is something that they ask you questions from copyrights, from patents, and यहाँ पर भी case laws एक importance hold करता है. Case laws do come from copyrights and patents as well. Trademarks, and कभी कभार questions आ जाते हैं biodiversity, geographical indications से, but ज़्यादा probability होती है that the questions come from copyrights, patent and trademarks. Other than this, comparative, and yes, section based questions can come from IPR. Okay, so do the sections well, case laws well. UGC नेट का एक पैटर्न है कि वो मैच द कॉलम्स में काफ़ी क्वेश्चंस देते हैं. उससे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाते हैं, एंड सेक्शन बेस्ड भी हो जाते हैं, कुछ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई द थरो रीडिंग इज़ वेरी key for all the subjects, especially in law subjects, in the law syllabus. Comparative public law is so you should focus on the systems of USA, Canada, India. It's very important. Now they can give you passage based question also over here. It is their discretion. मैं questions पर एक और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं UGC नेट एग्जाम में. Independence of judiciary is very important over here. Then the amendments are very important. Ombudsman concept is important. Generally question comes from ombudsman many times. It is repeated in the UGC NET exam. This unit looks very new to us, but I would say that it is not that difficult unit, and I would suggest that you should go through that. Don't leave any unit.
because as I told you that there is no fixed criteria, or it is not set that they will ask you questions from this unit only and they will not ask you questions from this unit. ऐसा कुछ भी fixed नहीं है. So सारा syllabus आपको अच्छे से prepare करना है. So immediately start preparing for your exam. If you have any queries, you can write to us at hello@iexambee.com. You can also write in the comment section of this video. You can visit our website www.iexambee.com and call on the number on the screen. And don't forget to subscribe to Legal Bee for regular updates. Prepare 50% faster with iExambee. Thank you.